Hello students. Uh, in this lecture we will discuss A to D conversion. What is A to D conversion is conversion of analog signal into digital signal. So in this lecture we will mainly discuss three important processes. One is sampling, another one is quantization, and the third one is encoding. So these are the references books where you can study in detail on this process of analog to digital conversion. So what happens in analog to digital conversion? So we have an analog signal and it can be converted into a digital signal through three different processes, as I have already told. First one is sampling process, second one is quantization process, and the third one is encoding. So through these three processes, an analog signal is converted into digital signal. So we'll study in detail about these three processes. That is what is sampling, what is quantization, and what is encoding. So if we see, not a sampling, in a very layman language, we can say that it is a process where a time continuous signal is converted into time discrete. So you have to emphasize on this term that a continuous signal is converted into time discrete in the process of sampling. In the next slide, I'll show you how it looks like. Then in quantization, so in the first step, we have obtained a time discrete signal, but there is no discretion on the amplitude. So in quantization, what happens? A time discrete signal is further made amplitude discrete. यानी यहाँ पर हम एक टाइम डिस्क्रीट सिग्नल जिसके अंदर एम्पलीट्यूड के अंदर कोई डिस्क्रिशन नहीं होता, वहां पर हम एम्पलीट्यूड को भी डिस्क्रीट करते हैं, यानी एम्पलीट्यूड पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं. So that signal becomes our quantized signal. And the third one is encoding. Yani in encoding is a process where the electrical signals are converted into binary form. So that process is called encoding. So in the next slide, if we see in detail, so this is our analog signal. So this is an analog signal. You can say it is a sinusoidal signal where it is being characterized by certain amplitude, phase, and frequency. If we see now what is sampling process, so up you can see over here we have these samples that are being extracted from the time continuous signal. So it is a time continuous signal where it is defined at every instant of time, whereas this is a sampled signal where we have these samples which are being defined only at certain time instants. So this is a sampled signal, यानी ये जो सिग्नल है टाइम कंटिन्यूस है, यानी ये सिग्नल हर एक टाइम इंस्टेंट पर डिफाइंड है, लेकिन जब हम सैम्पल्ड सिग्नल की बात करते हैं तो ये सिग्नल कुछ सर्टेन टाइम इंस्टेंट्स पर ही डिफाइंड होता है, जो कि आपको एक वर्टिकल लाइन से दिख रहा है. दीज आर द values that are extracted from an analog signal. So another one is quantization. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड को भी हमने फिक्स कर दिया, यानी एक सैंपल से दूसरे सैंपल के बीच ये एम्पलीट्यूड फिक्स है, और जहां पर हम एम्पलीट्यूड को भी फिक्स कर देते हैं, सो दैट सिग्नल बिकम्स आर क्वांटाइज्ड सिग्नल. तो यहाँ पर हम और डिटेल में समझेंगे कि सैम्पलिंग प्रोसेस कैसे होता है, मतलब सैम्पल सिग्नल कैसे जनरेट होता है, देन हाउ इट इज क्वांटाइज एंड देन हाउ इट इज एनकोडेड. तो यहाँ पे एक सिग्नल हमने लिया हुआ है जो ट्रांजिट कर रहा है -4 वोल्ट से +4 वोल्ट, और एक हमने एनालॉग सिग्नल लिया जो पीक टू पीक वेरी कर रहा है -4 वोल्ट से +4 वोल्ट, जैसे मैंने भी आपको बताया. यहाँ पे हमने जो डॉट्स लिए हैं ये हमने यहाँ पे शो किया हुआ सैम्पल्ड वैल्यूज. यानी एक सैम्पल्ड वैल्यू हमने यहाँ ली, दूसरी सैम्पल्ड वैल्यू यहाँ से ली, यानी जो सिग्नल सैम्पल्ड सिग्नल है वो यहाँ खाली इस इंस्टेंट पे डिफाइंड है, फिर इस इंस्टेंट पे डिफाइंड है, फिर इस इंस्टेंट पे डिफाइंड है, यहाँ पर डिफाइंड है, यहाँ पर डिफाइंड है, और दो इंस्टेंट के बीच में सैम्पल सिग्नल डिफाइंड नहीं होता, इसलिए इसको सैम्पल्ड सिग्नल या टाइम डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं. तो अगर हम इन
सैम्पल वैल्यूज को लें तो पहला सैम्पल वैल्यूज है 2.3 वोल्ट, देन 3.1 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, 3.8 वोल्ट एंड सो ऑन। सो ये जो हमने वैल्यूज नीचे शो की क्या सैम्पल्ड वैल्यूज है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टाइम कंटिन्यूस सिग्नल के अंदर से कुछ इंस्टेंट्स पे वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट किया, जो वैल्यूज यहाँ पर नीचे दिखाई हुई हैं, एंड दैट आवर सिग्नल बिकम्स टाइम डिस्क्रीट, दैट इज सैम्पल्ड सिग्नल। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर ये हमने ग्रीन डैश डैश लाइंस हैं रेड कलर में, जो कि वैल्यूज दिखा रहा है -4 वोल्ट, -3 वोल्ट, -2 वोल्ट, -1 वोल्ट। इसके बीच में आप देख रहे हो ग्रीन लाइन्स है, तो ग्रीन लाइन्स क्या दिखा रहा है, क्वांटाइज लेवल्स। तो क्वांटाइज लेवल का मतलब होता है यानी दो लेवल्स के बीच, यानी -4 वोल्ट से -3 वोल्ट के बीच जो एक मिडिल लाइन है, ये है क्वांटाइज लेवल। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप साइज है, यानी -4 वोल्ट से -3 वोल्ट एक स्टेप साइज, इसको हम डेल्टा से डिफाइन करते हैं। फिर -3 वोल्ट से -2 वोल्ट दूसरा स्टेप है, जिसको फिर से डेल्टा से डिफाइन किया हुआ है। और आप देखेंगे पहले स्टेप साइज के लिए जो क्वांटाइज वैल्यू है वो फिक्स है -3.5 वोल्ट के लिए। फिर -3 वोल्ट से -2 वोल्ट के बीच में जो एक ग्रीन लाइन दिखाई हुई वो क्या डिपिक्ट कर रही है, क्वांटाइज लेवल जो है -2.5 वोल्ट पे। इसी तरह -2 से -वोल्ट के बीच एक और ग्रीन लाइन है जो दिखा रहा है क्वांटाइज लेवल -1.5 वोल्ट, यानी क्वांटाइज लेवल दो वोल्टेज लेवल्स के बीच को ही डिपेक्ट करता है। और ये एक स्टेप साइज है, स्टेप साइज कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट का। फिर दूसरा स्टेप साइज है 1 वोल्ट का। उसके बाद आप देखोगे -3.5 वोल्ट एक क्वांटाइज लेवल्स है। तो कितने क्वांटाइज लेवल डिफाइन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी -4 वोल्ट से +4 वोल्ट के बीच 8 क्वांटाइज लेवल्स डिफाइंड हुए। और हर क्वांटाइज लेवल को हम बिट्स में डिफाइन करते हैं, क्योंकि 8 लेवल्स हैं तो मैक्सिमम बिट्स जो डेजिग्नेट होंगी 3 बिट्स की होंगी। तो पहला क्वांटाइज लेवल की वैल्यू है 000, देन 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111। तो जो सैम्पल्ड वैल्यू है, जो पहली सैम्पल्ड वैल्यू, इसके लिए क्वांटाइज लेवल क्या फिक्स हुआ, यानी जब ये सैम्पल्ड वैल्यू, यानी जो सिग्नल की हम बात करें तो यहाँ से जब सिग्नल इस लेवल में है, यानी इस सिग्नल 1 वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच में, तो आप देखोगे जो क्वांटाइज लेवल फिक्स हुआ वो +1.5 वोल्ट फिक्स हुआ। और जैसे ही ये सिग्नल, ये जो ब्लू कलर में जो सिग्नल है, जैसे ही वो 2 वोल्ट को क्रॉस कर रहा है, तो क्वांटाइज वैल्यू, यानी जो सिग्नल की वैल्यू फिक्स हो गई वो +2.5 वोल्ट में फिक्स हो गया, यानी ग्रीन रेड कलर से। तो हम +1.5 से सिग्नल फिक्स हो गया +2.5 वोल्ट पे। फिर जैसे ही सिग्नल, ब्लू सिग्नल 3 वोल्ट को क्रॉस करता है, 4 वोल्ट की रेंज में आता है, नहीं 3 से 4 वोल्ट की स्टेप में आता है, फिर जो क्वांटाइज वैल्यू है जो 2.5 वोल्ट पर फिक्स थी, वो अब किस पे फिक्स हो गई, 3.5 वोल्ट पे। फिर 3.5 वोल्ट पे बनी हुई, क्योंकि सिग्नल 3 से 4 वोल्ट के बीच में है। जैसे ही ये सिग्नल 3.3 वोल्ट को क्रॉस करके 3 से और 2 वोल्ट के बीच में आता है, तो आप देखो क्वांटाइज वैल्यू फिर से 3.5 से अब फिक्स हो गई 2.5 एंड सो ऑन। तो ये जो लाल कलर से आपको सिग्नल दिख रहा है, ये क्वांटाइज सिग्नल है जो क्वांटाइज लेवल पर फिक्स है। और ये कैसे फिक्स है, यानी जिस स्टेप में सिग्नल ट्रांजिट कर रहा है, जैसे अगर फिर से आप देखो जैसे सिग्नल 1 से 2 वोल्ट के बीच ट्रांजिट कर रहा है, तो इट इज फिक्स एट क्वांटाइज लेवल इन बिटवीन 1.5 वोल्ट। फिर जैसे सिग्नल 2 वोल्ट को क्रॉस करके 2 से 3 वोल्ट स्टेप में आता है, तो सिग्नल इज फिक्स एट क्वांटाइज वैल्यू 2.5 वोल्ट एंड सो ऑन। तो ये रेड कलर से क्वांटाइज लेवल फिक्स हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्वांटाइज लेवल फिक्स है, यानी 2.3 के लिए, यानी एक्चुअल सैंपल वैल्यू 2.3 है, और क्वांटाइज वैल्यू फिक्स हो गया 2.5 वोल्ट पे। इस तरह एक्चुअल सिग्नल वैल्यू 3.1 वोल्ट है, पर क्वांटाइज वैल्यू इसके लिए फिक्स हो गई 3.5 वोल्ट। इसी तरह एक्चुअल सिग्नल सैम्पल्ड है एट 3.7 वोल्ट, बट क्वांटाइज वैल्यू 3.5 वोल्ट। तो इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू इज द सैम्पल्ड वैल्यू एंड द estimated value is quantized value which is depicted
बिलो, और यहाँ इनका दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। सो लाइक दिस द सिग्नल इज क्वांटाइज। उसके बाद आप देखोगे कि कैसे हम इस सिग्नल को एनकोड करते हैं। तो अगर हम देखें 2.5 क्वांटाइजेशन लेवल के लिए, 2.5 क्वांटाइजेशन लेवल के लिए तो एनकोडेड लेवल है 110। सो दिस 2.5 quantized value is now transformed into digital form which is 110। then 3.5 volt के लिए आप देख सकते हो the quantized value is 111। so for 3.5 quantized value the encoded value is 111 and so on। so finally what we get the signal in digital form। so इस slide में आप देख सकते हो the first one is sampled value, then this sampled value is converted into quantized value which is an estimated value, and then finally this quantized value is converted into encoded value in digital form, and this is how an analog signal is converted into a digital signal, and this is the whole process of analog to digital conversion। so I hope this process आपको समझ आया होगा। थैंक यू।